بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ بیساکھ کے دن تھے، ہر سو گندم کے پیلے خوشے سونے کی مانند چمک رہے تھے۔ ان سونے جیسے خوشوں سے جانے کتنی امیدیں جڑی تھیں، جانے کتنے خواب وابستہ تھے، کیسی کیسی خواہشیں تھیں جو ان سے پوری ہونا تھیں، کتنوں کی بیٹیاں بیاتے سدھارنا تھیں، جانے کس کس کے کاندھوں پر دھرا قرض کا بوجھ اترنا تھا، کتنے گھروں میں بستی ماؤں کی آنکھوں میں امید و آس کے بجھتے دیے پھر سے روشن ہو گئے تھے۔ سال بھر کے تھکے ہارے انسانوں میں بجلی سی بھر گئی تھی۔ گرمیوں کی ابتدا تھی، ہلکی سی چلنے والی ہوا کب آندھی کا روپ دھار لے کوئی اعتبار نہیں تھا، اور پھر سال بھر کی محنت پر پانی پھر جاتا۔ گندم کی کٹائی تو ہو چکی تھی، آج کی رات تھریشر لگنا تھی۔ دل سے یہی دعا نکلتی کہ خیریت سے فصل ٹھکانے لگ جائے، ورنہ خدا نہ خواستہ سال بھر کے قرض کہاں سے چکانے تھے، اگلی فصل پر اٹھنے والے اخراجات کہاں سے ادا کرنے تھے۔ ہم کسانوں کا سب کچھ ہمارے کھیت ہی ہوتی ہیں، ہمیں اپنے کھیتوں سے اپنی اولاد کی طرح پیار ہوتا ہے۔ جب تک فصل نہ ٹھکانے لگ جاتی، ہم یعنی کہ میں اور میرا ساجی باری باری کٹی ہوئی فصل کا پہرا دیتے۔ آج رات ہم دونوں ہی کھیتوں میں موجود تھے، سارے مزدور مل کر کام کر رہے تھے۔ ہم خوفزدہ بھی تھے کہ کہیں آندھی نہ آ جائے۔ مغرب کا وقت گزر چکا تھا، شام رات میں ڈھل گئی تھی، اب قدرے اطمینان تھا۔ میرا ساجی اپنے گھر سے سارے مزدوروں کا کھانا لینے چلا گیا، میں کھیتوں میں مزدوروں کی نگرانی کر رہا تھا۔ اچانک سے ہوا کا زور کا جھونکا آیا جو زوردار آندھی کا پیش خیمہ تھا۔ تیز ہوائیں ہمیں حواس باختہ کر گئیں۔ ہوا کے جھونکے کے ساتھ ہی آندھی کی گرد و غبار آسمان پر چھا گئی۔ سنسناتی ہوائیں گندم کے تنکوں کو خوشوں سمیت بکھرانے لگیں۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ ہمیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ سنبھل جاتے بھی تو کیا کر لیتے، فصل کے ڈھیروں کو کہاں چھپاتے یا ہواؤں کے آگے بند کیسے باندھتے۔ ہوائیں اپنے ساتھ ریتلی مٹی کا طوفان بھی لائی تھیں جن سے ہمارے منہ سر آلود ہو چکے تھے۔ میری تو آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے۔ یہ چبھن ایسی ہی تھی کہ سبھی مزدوروں کی آنکھوں میں پانی آ گیا، چہرے ہراساں دکھائی دینے لگے۔ ظاہر سی بات تھی، فصل کی بربادی کا مطلب تھا ان کی مزدوری کی بربادی۔ ہم ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ کھیتوں میں بنا کچا مکان ہم نے جائے پناہ بنایا اور آندھی رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ دل ہی دل میں بارش نہ ہونے کی دعا کر رہے تھے۔ فصل کے تنکے ہوا میں بکھرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہماری امیدیں، آرزوئیں اور خواب بھی بکھرتے جا رہے تھے۔ خدا خدا کر کے آندھی کا زور ٹوٹا۔ اتنے میں میرا ساجی آندھی طوفان کی مانند موٹر سائیکل بھگاتا ہوا نظر آیا۔ وہ ہمارے قریب آتے ہی بائک سمیت زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس کے قریب جا کر دیکھا تو وہ بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے بال پراگندہ تھے، ہونٹ پیڑھی زدہ، سر سے لے کر پیروں تک گردآلود تھا۔ ہم مل کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے اپنے ساتھ بیتی آپ بیتی ہمیں سنائی تو ہم حیرت سے دنگ رہ گئے۔ اس بات کو اس کا وہم بھی نہ کہہ سکے کیونکہ اس کی حالت اس کی سچائی کی گواہی دے رہی تھی۔ دراصل ہوا یہ کہ ساجی ابھی گھر پہنچا ہی تھا کہ تیز ہوا کے جھونکوں نے ہماری طرح اس کی حالت کو بھی خراب کر دیا۔ وہ کھانے کو بھول کر انہی قدموں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر کھیتوں کی جانب دوڑا۔ جس راستے سے اس نے گزر کر آنا تھا اس کے راستے میں ایک کھنڈر نما آسیب زدہ مکان بھی تھا جس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں جنات بستے ہیں۔ اس کھنڈر تک پہنچتے پہنچتے آندھی زوروں پر آ چکی تھی۔ اس نے سڑک کنارے ایک بوڑھے اور بڑھیا کو دیکھا جو ہاتھ کے اشارے سے اسے روک رہے تھے۔ ساجی کو ان پر ترس آ گیا۔ اس طوفان میں یہ بوڑھے لوگ جانے کہاں جانا چاہ رہے تھے۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ میرے ساتھی کا نام دلاور ہے، تو دلاور نے ان کے قریب جا کر موٹر سائیکل روک دی۔ کہاں جانا ہے بزرگ کو؟ دلاور نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے ہاتھ سے اسی جانب اشارہ کر دیا جس جانب دلاور جا رہا تھا۔ ان کی اسرار بھری خاموشی دلاور کو کھٹک رہی تھی، مگر اس نے اس خاموشی کو ویرانے اور آندھی کا خوف جانا۔ بہرحال
दिलावर ने इन दोनों बुजुर्गों को अपने मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। उन्हें बिठाने के बाद वो अभी चला ही था कि उसे अपनी मोटरसाइकिल वजनी महसूस हुई। जूं जूं वो आगे बढ़ता गया त्यों वजन बढ़ता गया, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल का चलना दुश्वार हो गया। उसने हैरत से पलट कर देखा कि सूखे सड़े नजर आने वाले बूढ़े और बुढ़िया का वजन इस कदर ज्यादा कैसे हो गया कि मोटरसाइकिल का चलना मुश्किल हो गया। लेकिन पलटकर देखने पर वो हैरत से दंग रह गया, क्योंकि उन दोनों की टांगें इस कदर लंबी हो चुकी थीं कि मोटरसाइकिल के साथ साथ जमीन पर घसीटती हुई आ रही थीं। उनके पांव वहीं के वहीं थे जहां से दिलावर ने उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठाया, लेकिन मोटरसाइकिल के आगे बढ़ने के साथ इनकी टांगें लंबी होती जा रही थीं और इनका वजन भी बढ़ता जा रहा था। खौफ दिलावर की रगों में सरायत कर गया था। उसके दिमाग ने फौरन उसका साथ दिया। उसने मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाकर उन दोनों को उतरने का कहा, मगर उनकी तरफ से इसरार भरी खामोशी थी। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और चेहरे तासुरात से आरी थे। वजूद बर्फ की माने ठंडे यख थे। जब इनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया तो दिलावर ने दोनों को धक्का देकर गिरा दिया और जल्दी से मोटरसाइकिल खेतों की तरफ भगा दी। मगर अगले ही पल उसे ब्रेक लगाना पड़ी, क्योंकि वो दोनों सामने मौजूद थे। अब तो दिलावर के रहे सहे औसान भी खता हो गए। उसने जल्दी से मोटरसाइकिल पीछे मोड़ दी और अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो दोनों फिर से उसके सामने मौजूद थे। उसने मोटरसाइकिल खेतों की तरफ मोड़ दी, मगर फिर वो सामने मौजूद थे। दिलावर समझने से कासिर था कि आखिर ये चक्कर क्या है। उसने खुद को संभाला, खौफ को दिल से निकालकर सोचा कि शायद वो दोनों जिन्नात की कौम से हों और कहीं जाना चाह रहे हों, तो क्यों ना हिम्मत करके उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए, वरना तो ये पीछा छोड़ते नजर नहीं आ रहे। ना ही दूर दूर तक किसी इंसान का निशान था जो उसकी मदद करता। आंधी जोरों पर थी। उसने मोटरसाइकिल उन दोनों के करीब रोककर पूछा कि आखिर वो जाना कहाँ चाहते हैं, मगर उनकी तरफ से खामोशी, जवाब निदारत। वो दोनों फिर से आए और उसकी मोटरसाइकिल पर बिना पूछे सवार हो गए। दिलावर ने मजबूरन मोटरसाइकिल फिर चला दी, मगर इनकी वही हरकतें फिर से शुरू हो गईं। अब तो उनकी टांगों के साथ उनके हाथ और बाजू भी लंबे होने लगे। दिलावर को ऐसा लगा जैसे वो अभी अपने बाजू और हाथ उसकी गर्दन के गिर्द लपेट देंगे और किसी नाग की मानिंद उसके जिस्म को पीस कर रख देंगे। वजन बढ़ने से दिलावर की मोटरसाइकिल का चढ़ना दुश्वार हो गया था। गर्ज जब तक आंधी का जोर नहीं टूटा, दिलावर के साथ यही तमाशा होता रहा। कभी वो दोनों सामने मौजूद होते तो कभी उसकी मोटरसाइकिल पर सवार हो जाते। काफी देर के बाद जब आंधी थमी तो वो दोनों भी उसकी मोटरसाइकिल से गायब हो गए। अब दिलावर ने बड़े हौसले से मोटरसाइकिल चलाई और खेतों तक पहुंचा, मगर यहाँ आते ही हौसला हार दिया और खौफ के गलबे ने उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद काफी देर तक हम उसे उठाते रहे। हमने उस पर ठंडा पानी छिड़का, तब वो होश में आया और उसने इधर उधर देखकर हमें पहचानने में काफी देर लगाई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जहन से सब कुछ महव हो गया हो। हम लोग जिस झोंपड़ी में ठहरे थे वहां पर रोशनी का बंदोबस्त भी था। मैंने और मेरे दोस्त ने दिलावर को झोंपड़ी तक पहुंचाया। दिलावर वहां लेटकर कुछ सुकून महसूस कर रहा था, मगर उसकी आंखें अभी तक पथराई हुई थीं। लगता था कि बूढ़े जिन्नात का खौफ अभी तक उसके दिल से गया नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वो हमसे बातें करने लगा। पहले तो उसने एक ही सांस में अपनी बात सुना दी थी, मगर अब वो एक एक करके सारी बातें याद कर रहा था। हम तो यही सोच रहे थे कि इसी में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि इन लोगों ने दिलावर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बस ये खामोशी से मोटरसाइकिल पर सवार हो जाते। शायद अपने मनपसंद मौसम में मोटरसाइकिल की सवारी का मजा लेना चाहते हूँ। फिर दोनों मोटरसाइकिल से उतर के दिलावर उन्हें टिकटिकी बांधे देखता रहा कि इतने में उसे बूढ़े की आवाज सुनाई दी, जा चला जा, भले का भला होता है, खुशी खुशी चला जा। हमदर्दी और दुआएं काम आ गईं।
दिलावर ने जब ये सुना तो उसकी जान में जान आई। उसे मालूम हो गया कि ये जिन्नात उसे कुछ नहीं कहेंगे। अब वो हमसे बातें कर रहा था और हमें इस वाक़े की तफसीलात से आगाह कर रहा था। थोड़ी देर गुजरी, हमने सोचा कि अब तो रात काफ़ी हो गई है, हम लोगों को अपना काम दोबारा से शुरू करना चाहिए। आंधी भी थम गई थी। वैसे भी अब मौसम पहले से बेहतर हो गया था। हम लोग झोंपड़ी से बाहर आए और अपने काम काज में मसरूफ हो गए। हमारा तो ख्याल यही था कि ऐसे वाक़यात बार बार नहीं होते। इंसान की जिंदगी में इत्तेफाकन ऐसा वाक़या कभी कभार हो जाता है, मगर हमें इस हकीकत का अंदाज़ा नहीं था कि दिलावर के साथ जो वाक़या पेश आया उसने जिन्नात के साथ उसके राब्ते का आगाज़ कर दिया है, और मज़ीद ये कि ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। हम अपनी तरफ से मुतमईन होकर अपने काम से फारिग होकर घर ही जा रहे थे कि हमें दिलावर ने एक तरफ इशारा करके देखने को कहा। हम लोगों ने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। दिलावर ये देखकर घबरा गया, बोला, मुझे अपने घर ही ले चलो, लगता है आज रात बहुत परेशानी में गुजरेगी। दिलावर की हालत देखकर मैं उसे अपने घर ले आया। रात को सोने के लिए हम तीनों दोस्त एक ही कमरे में अलग अलग चारपाइयों पर लेटे अपने माजी की बातें कर रहे थे, कुछ मुस्तकबिल के सपने बुन रहे थे कि तभी दिलावर की चीख सुनाई दी। हमने देखा तो वो जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। चारपाई से कब गिरा ये हमने देखा ही नहीं। दिलावर को बड़ी मुश्किल से चारपाई पर लटाया तो वो फिर से हमें अजनबी निगाहों से देखने लगा, जैसे हमने कुछ गलत कह दिया हो। मैंने कहा, दिलावर भाई, उन जिन्नों के ड्रामे से अब निकल आओ, न जाने तुम कब तक यही सोचते रहोगे। मेरी इस बात पर दिलावर ने मुझे घूर कर देखा और फिर एक जोरदार तमांचा मेरे गाल पर रसीद कर दिया। ये तमांचा ऐसा था कि खाकर मेरे होशो हवास जाते रहे, मगर मैंने इसे वक्ती जज्बाती दबाव समझा और दिलावर को कुछ न कहा। मैं और रिजवान दिलावर की खिदमत करते रहे। सुबह हो गई, दिलावर भी सब कुछ भूल भाल गया। अब हम समझे कि शायद दिलावर ठीक हो गया है, बात पहले जैसी हो जाएगी, मगर ये मुमकिन नहीं हुआ। दिलावर ने उसके बाद अजीबो गरीब हरकतें शुरू कर दी। दिलावर दिन में भी अक्सर खोया खोया नजर आता, कभी एक खेत जाता तो कभी दूसरे खेत को निकल जाता। मैं और दिलावर रात को एक ही कमरे में सोते थे। एक रात की बात है, मुझे कमरे में कुछ खटका सा महसूस हुआ। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। मेरी नजर दिलावर की चारपाई पर पड़ी तो देखा दिलावर कमरे से गायब था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा, दिलावर को पूरे कमरे में ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं था। मजबूरन मुझे कमरे से बाहर जाकर देखना पड़ा, मगर दिलावर कहीं होता तो नजर आता। ऐसे में मुझे डर भी बहुत लग रहा था। गांव की रातें अकेले में बहुत खौफनाक और हैबतनाक लगती हैं। 2-3 लोग हों तो डर कम हो जाता है, मगर अकेले इंसान के लिए गांव की रातों में तन्हा खड़े होकर आसमान को देखना भी, इसके लिए भी काफी हिम्मत चाहिए। मेरी बात पर आपको हैरत हो रही होगी, मगर गांव में खामोशी और अंधेरा बहुत भयानक होता है। इंसान को अपनी आवाज से भी डर लगने लगता है। खैर, मैं काफी देर दिलावर को ढूंढता रहा, मगर वो कहीं नहीं मिला तो मैं वापस आकर अपने कमरे में सो गया। अगले दिन मैंने ये बात अपने दूसरे दोस्त रिजवान को बताई तो वो कहने लगा, जिन लोगों पर आसेब का साया होता है, रात को उन्हें नींद में चलने की आदत होती है। बेहतर यही है कि हम लोग घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर दें और फिर वापस खिड़की से अंदर कमरे में आकर सोया करें। हमें ये तो पता चले कि दिलावर कब बाहर जाता है। अगर हम बाहर से दरवाज़ा बंद रखेंगे तो दिलावर बाहर नहीं जा सकेगा, क्योंकि नींद में उसे ये याद न रहेगा कि हम तो खिड़की से बाहर आए थे और दरवाजे पर कुंडी लगी हुई थी। यही सोचकर रात को हम लोग सोए तो बाहर से कमरे को ताला लगा दिया, खुद खिड़की से अंदर आ गए। पहले दिलावर को चारपाई पर लटा दिया था। खैर, रात का न जाने कौन सा पहर था। मैंने देखा कमरे में जोर जोर की आवाजें आ रही थीं। मैं और रिजवान उठकर बैठ गए। नजर दिलावर पर पड़ी तो वो दरवाजे को जोर जोर से खोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने रिजवान से कहा, रिजवान को इशारा किया तो उसने मुझे चुप रहने का कहा,
बोला कि इसे कोशिश करने दो, जब ये नाकाम हो जाएगा तो खुद ही बैठ जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। अभी दिलावर दरवाजे के पास ही खड़ा था कि खिड़की से किसी के दरवाजा बजाने की आवाज आई। मैं ये देखकर डर गया। तभी मेरी नजर खिड़की से बाहर पड़ी तो मेरी ये देखकर जान ही निकल गई कि वहां एक वजूद खड़ा था, मगर खौफजदा नहीं, इंतहाई हसीन और खूबसूरत लड़की जो खिड़की के बाहर खड़ी दिलावर का इंतजार कर रही थी। दिलावर मुसलसल दरवाजा बजा रहा था। हमने बड़ी मुश्किल से उसे चारपाई पर लटाया। मैंने डरते डरते खिड़की के पास जाकर जोर से खिड़की का पट बंद कर दिया। वो लड़की जो बाहर खड़ी थी पथराई हुई आंखों से मुझे देखती ही रह गई। आज तक उसकी आंखें मेरे दिमाग में कहीं घूमती हैं। मुझे लगता है जैसे मैं उसे कई बार देख चुका हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आता कि वो कौन थी और कहाँ गई। दिलावर सारी रात सुकून से सोता रहा। बाहर खिड़की और दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक होती रही। कोई निस्वानी सी आवाज थी जो दिलावर का नाम पुकार रही थी, मगर हमने दिलावर को दम दुरूद वगैरह करके सुला दिया। वो सुबह उठा तो ताज़ा दम था। दिन भर भी वो खुशबाश रहा। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसे समझाना शुरू कर दिया कि वो किस जाल में फंसा है। दिलावर को भी मेरी बात समझ में आ गई। उसने दिन को हमें बताए बिना इधर उधर जाना छोड़ दिया और सिर्फ हमारे साथ रहने लगा। मैंने उसे पाबंदी नमाज का कहा और फिर उसके साथ मिलकर उसके हर मसले को ध्यान से सुना। पता चला कि दिलावर की तबीयत पिछले 2-3 दिनों से ठीक नहीं थी। मुझे तो इस सब का सबब दिलावर का रात के वक्त उठकर उस हसीना से मिलने जाना लगता है, क्योंकि जिन्नात की दोस्ती, दुश्मनी या ताल्लुकात इंसान जैसी नाजुक मखलूक पर भारी पड़ते हैं। वो आग से बनी मखलूक है, उनका हम इंसानों से क्या मुकाबला। दिलावर आज एक शादीशुदा और नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वो इसी रास्ते पर चलता रहता तो शायद जिंदगी भर उसे यही अजियत उठाना पड़ती, मगर खुदा का शुक्र है कि हमने सही वक्त पर मदद करके दिलावर को बचा लिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।